پیارے ناظرین، آج کا ویڈیو خاص میری پیاری بہنوں ماؤں کے لیے ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا بیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، ایک ایسی رات جسے چھوڑ کر بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیں، اور ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے آپ کی ضرورت کی ویڈیو لاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، میری پیاری بہنوں، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہ کون سی رات ہے؟ تو وہ ہے شب برات۔ شب برات کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات، یعنی وہ مبارک رات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، آج کی رات میں ہم نے اس مقدس رات کو رسم و رواجوں کی نظر کر دیا ہے۔ اس بابرکت رات کو ہم آتش بازی میں ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات جھکنے کی رات ہے، یہ مبارک رات یا اللہ کے حضور رونے کی رات ہے۔ میرے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اسے نجات دے دوں۔ اور پیارے ناظرین، یہ صدق پوری رات لگتی رہتی ہے۔ سوچو، اگر دنیا کا ہر کوئی بادشاہ اپنے دروازے کھول کر مانگ لے، اعلان کر دیں کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہیں فوراً دے دیا جائے گا، تو لوگ راتوں کو جاگ جاگ کر قطاروں میں لگ کر سفارشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنا حصہ لینے پہنچ جائیں گے۔ لیکن افسوس، آسمانوں کی بادشاہ، پوری کائنات کا مالک خود ہمیں بلا رہا ہے، مگر ہم بے خبر سو رہے ہیں۔ یہ شب برات کی رات ہے، وہ مبارک رات جب ہم زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر اس موقع کو گنوا دیتے ہیں۔ کیا ہم اس رات جاگ کر اپنے گناہوں کو معافی نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم اس رات اللہ کے حضور جھک کر اپنی قسمت کے فیصلے نہیں بدلوا سکتے؟ یہ وہ رات ہے جسے سنوارنے والے کامیاب ہوتے ہیں اور ضائع کرنے والے ناکام ہوتے ہیں، اور وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بابرکت رات کے بارے میں کچھ خاص معلومات دوں گی۔ تو پیارے ناظرین، میری بہنوں بھائیوں، یہ وہ رات ہے جسے پوری کائنات میں ایک خاص مقام حاصل ہے، ایک ایسی رات جس میں تاریخ کی بے حساب حیران کر دینے والے اور عقل کو دنگ کر دینے والے واقعات کون سا ہوئے۔ اگر ہم آغاز انسانیت سے دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی شب برات میں قبول ہوئی، انہیں اسی رات زمین پر خلافت عطا کی گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے فیصلے کی رات بھی یہی تھی، جب پانی میں طوفان کا آغاز ہوا اور اللہ نے اپنی قدرت سے ظالموں کو نیست نابود کر دیا، تو وہ رات بھی شب برات کی رات تھی۔ آگے پڑھیں، تاریخ کی حساب میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس رات آگ میں ڈالا گیا، یہ وہی رات تھی، شب برات تھی، اور اس بابرکت رات کے صدقے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی رات اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ملا اور بنی اسرائیل کے لیے فرعون کے ظلم سے نجات کا راستہ کھلا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کا فرمان ملا۔ جس رات حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت کا اختیار دیا گیا، وہ رات بھی شب برات تھی۔ اسی رات کو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی رات بیماریوں سے اسے فرصت مل گئی۔ اللہ کی رحمت زمین پر اترتی ہے، اور اسی بابرکت یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمت برستی ہے، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، فیصلے لکھے جاتے ہیں،
लेकिन हम इसे ईद की रात समझकर अय्यासियों में लगा देते हैं। हमारे बच्चे आतिशबाजी करते हैं, शोरगुल करते हैं, गलियां मैदान जंग का मंजर पेश करती है और हम खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को यह सब करने की इजाज़त देते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमने कभी सोचा या हमारा यह फ़र्ज़ अमल मदीने वाले नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर रहा होगा? क्या हम यह तो हमेशा सादगी, इबादत और इस्तिग़फ़ार की तलकीन की, लेकिन बड़ी ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब वह करीम आका हमें इस हाल में देखते होंगे कि हम इस मुक़द्दस रात को ज़ाया कर रहे हैं, जब वह अपनी उम्मत की दुनिया को पीछे भागते हुए नाफरमानियों में गुम होता देखते होंगे, तो उनका दिल कितना दुखी होता होगा। क्या हमने कभी तसव्वुर किया है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में बैठे हमें देख रहे होंगे, आंखों में आंसू होंगे और बेकरार होकर कह रहे होंगे, हाय मेरी उम्मत, मैंने तो तुम्हें नमाज, इस्तिग़फ़ार, दरूद, तौबा और अल्लाह से लौ लगाने का सबक दिया था और तुम खेल कूद, आतिशबाजी, बाज़ारों की रौनकों और फिजूलियात में लग चुके हो। तुम्हें अल्लाह को मानना था, मगर तुम दुनिया को राज़ी कर रहे हो। मेरे प्यारे नाज़रीन, सोचो, क्या हम वह उम्मत नहीं जिसने मेरे नबी को मोहब्बत थी? क्या हमें अपने नबी के आंसू नज़र नहीं आते? अल्लाह फरमाता है कि यह दुनिया खेल तमाशा है, असल ज़िंदगी आखिरत की है, मगर नबी के आंसू नज़र नहीं आते। अल्लाह फरमाता है कि यह दुनिया खेल तमाशा है, असल ज़िंदगी आखिरत की है, मगर हमने सब कुछ भुला दिया। ज़िंदगी में कभी फुर्सत मिले तो अस्पतालों में जाकर किसी भी मरीज को देखो जो अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहा हो। अगर हम गौर करें तो यह मरीज रो कर कह रहा हो, काश तुम्हें यह मौका मिल जाए कि मैं एक रात ही सही सजदे में गुजार लूँ, एक रात ही सही अपने रब को राज़ी कर लूँ। मगर अफसोस, मौत उसे मोहलत नहीं देती। वह मरीज होकर यह तमन्ना कर रहा है और हम जिंदा होकर भी इस मुबारक रात में अल्लाह से आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। कभी कब्रिस्तान जाकर देखो, कैसी खामोशी है, कैसा अंधेरा है। वह लोग जो कभी हमारे साथ थे, जो हंसते बोलते थे, आज वह मिट्टी में जा चुके हैं और हम भूले बैठे हैं कि एक दिन हमें भी वहाँ जाना है। सोचो, जब फरिश्ते हमारे अमाल का हिसाब करेंगे और हम अल्लाह के दरबार में पेश होंगे, तो क्या हम कह सकेंगे कि ऐ अल्लाह, हमने सबे बरात तेरे हजूर झुककर अपनी बख्शिश करवाई थी। एक लम्हे के लिए सोचो, क्या हम इस रात को जाया करके क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर शर्मिंदा नहीं होंगे? खुदारा मेरे भाइयों, दुनिया के चंद लम्हों की खुशी हमेशा की बर्बादी में ना बदल देना, क्योंकि जो एक रात भी अल्लाह के खौफ से आंखों में आंसू लेकर गुजार ले, वह आखिरत में कभी रुसवा नहीं होगा। मेरे प्यारे बहनों, इस बाबरकत रातों में की गई इबादत आने वाली नस्लों को संवार देंगे, आपकी तकदीर बदल देंगे, आपके सोए हुए मुकद्दर को जगा देंगे, आपकी गुर्बत को जड़ से ख़त्म कर देंगे, आपकी दुआओं का यह असर अता कर देंगे जो कभी रद्द नहीं होगा। यह 5 अमल आपकी ज़िंदगी में वह खुशहाली लेकर आएंगे जो आपको हमेशा के लिए खुशहाल रखेगी, और रोशनी बख्शेंगे जो कभी बुझेगी नहीं। वह दरवाजे खोलेंगे जो कभी बंद नहीं होंगे, और वह बरकत नाजिल करेंगे जो कभी ख़त्म नहीं होगी। नंबर 1, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। तौबा और इस्तिग़फ़ार वह ताकतवर हथियार है जो कभी मिट्टी में दबे नसीबों को चमका देते हैं, जो बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल देते हैं, जो मायूसी को उम्मीद में और जवाल को उरूज में बदल देते हैं। जब एक बंदा दिल से तौबा करता है तो ज़मीन और आसमान के फैसले उसके हक़ में बदलने लगते हैं। उसकी बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, उस पर मुश्किलात के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसकी ज़िंदगी में ऐसी बरकत उतरती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। प्यारे नाजरीन, तौबा गुनाहों को सिर्फ मिटाती ही नहीं बल्कि तकदीर भी बदल देती है। यह दिल की यह सफाई है जिसके बाद अल्लाह की रहमत बेहिसाब बरसती है। ये वो नुस्खा है जिसे बर्बाद जिंदगियां दोबारा संवरती है। आपने कभी देखा है कि बारिश के बाद ज़मीन की मिट्टी खुशबू देने लगती है? हालांकि वह मिट्टी थी जो पहले गर्द और धूल से भरी होती है। बस थोड़ी सी बारिश ने मिट्टी के अंदर खुशबू डाल। प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही वह तुम्हारा दिल गुनाहों से बोझिल हो, जब तुम्हारे अमाल धूल में गंदे हो चुके हो, तो तौबा की जब बारिश बरसती है तो वह बारिश उस धूल को धो डालती है और तुम्हारा दिल ईमान की खुशबू से महक उठता है। आपने फरमाया, जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ है तो अल्लाह भी उसके लिए अपने दरवाजे खोल देता है, क्योंकि वह अल्लाह की रहमत
हर चीज़ से वसी है। वह गुनाहगारों को धुतकारता नहीं बल्कि अपनी आगोश में ले लेता है। यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। यह वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। एक ऐसा वाक़या जो अकल को झिंझोड़ दे, जिसे देखकर इंसान के गुनाह भी शर्मिंदा हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के द्वार में एक नौजवान था जो 20 साल तक अल्लाह की नाफरमानी में लगा रहा, 20 साल तक गुनाह करता रहा, 20 साल तक सर्कस में डूबा रहा। 20 साल तक उसने अपने रब को भुला दिया, लेकिन रब ने उसे नहीं भुलाया। एक दिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, जा मेरे इस बंदे को मेरा पैगाम दे। उसे कह दे कि ए नौजवान, 20 साल हो गए हैं तुझे मेरी नफरमानी करते हुए, अब तो बस कर, अब तो रुक जा, अब तो शर्म कर। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस नौजवान के पास पहुँचे, उसे अल्लाह का पैगाम दिया और जैसे ही उस गुनहगार ने यह अल्फाज सुने तो उसके वजूद पर लरज़ तारी हो गया, दिल की दुनिया हिल कर रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, चीखने लगा, वह कांपने लगा जैसे कोई सोया हुआ शख्स किसी जलजले से अचानक जाग जाए। यह पैगाम सुनते ही वह नौजवान यहाँ से जंगल की तरफ भागा निकला, बेखुदी के आलम में चलता गया। अपने रब से फरियाद करने लगा, ऐ अल्लाह, मैं तो हमेशा तेरे करम को अपने गुनाहों से ज़्यादा समझता रहा, मैं तो हमेशा तेरी रहमत को अपने गुनाहों से ज़्यादा मानता रहा, लेकिन आज जब मैंने तेरा पैगाम सुना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तेरी रहमत कम हो गई हो और मेरे गुनाह ज़्यादा हो गए हों। ऐ मेरे रब, अगर वाकई ऐसा है, अगर तेरे पास रहम कम रह गया है और मेरे गुनाह बढ़ गए हैं, अगर तेरे खजानों की मगफिरत कम हो गई है और मेरी बदअमालियाँ ज़्यादा हो गई है, तो ऐ अल्लाह फिर मुझे तबाह कर दे, मुझे ख़त्म कर दे, मुझे मिटा दे। अगर वाकई तेरी रहमत आज भी यही है, अगर आज भी तेरा करम मेरे गुनाहों से ज़्यादा है, अगर आज भी तू अपने बंदों को माफ़ करने वाला है, तो ऐ मेरे रब, मैं तेरी रहमत से सदके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। फिर मैं तेरी मगफिरत का सवाल हूँ, मैं तेरे दर पर झुक गया हूँ। अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर तू मेरी बख्शिश नहीं करेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? वह नौजवान रोता बिलखता रहा, चीखता रहा, लेकिन उसका अल्लाह खामोश नहीं था। वो अल्लाह जो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो अल्लाह जो एक आंसू बहाने वालों को पूरी दुनिया के आपकी दुआओं का रास्ता दिखाता है। इस रात कुरान की तिलावत करना ऐसा है जैसे तुम अल्लाह से खुद बात कर रहे हो, जैसे आप अल्लाह की हिदायत को अपने दिल में उतार रहे हो। क्या आपने कभी देखा है कि पानी के बिना मछली मर जाती है? बिल्कुल इसी तरह कुरान के बिना दिल भी मुर्दा हो जाता है। जो दिल अल्लाह के कलाम से आबाद हो जाए, उस पर कभी गम और बेसुकूनी गालिब नहीं आती। इसीलिए इस बाबरकत रात में जितना मुमकिन हो कुरान पढ़ो, क्योंकि ये वो अमल है जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को, यही वो है जो इंतज़ार करता है कि कब उसका बंदा लौटे और कब उसके दरवाजे पर आकर कहे, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे। और जैसे ही वह कह दे तो अल्लाह उसे गले लगाकर कहता है कि मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तो फरमाया, इस बाबरकत रात में पहला अमल जो करना है वह इस्तगफार करना है, दूसरा अमल नमाज पढ़ना है। ये रात में जिसमें एक सजदा आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, एक रुकू आपके नसीब खोल सकता है, एक आंसू आपके सारे गुनाह धो सकता है। और मेरा रब कहता है, जा तुझे माफ़ कर दिया। तो फरमाया, इस बाबरकत रात में पहला अमल जो करता है वो ये है इस्तगफार का करना है, दूसरा अमल नमाज पढ़ना है। ये रात वो रात में जिसमें एक सजदा आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, एक रुकू आपके नसीब खोल सकता है, एक आंसू आपके सारे गुनाह धो सकता है। प्यारे नाजरीन, शब बारात की रात नफिल नमाज पढ़ना ऐसा है जैसे आप एक मुकद्दर को अपने हाथों से संवार रहे हो। ये वो रात है जब अल्लाह अपने बंदों को देखकर फख्र करता है, जब वह फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे मेरी रहमत की उम्मीद में झुक रहे हैं। तो इसीलिए नाजरीन, इस रात जितना हो सके नफिल नमाज पढ़ें, क्योंकि यह वो इबादत है जो आपके रिज्क में बरकत, आपकी परेशानियों में सुकून और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ले आएगी। सोचो, अगर कोई शख्स अंधेरे में हो, रास्ता ना दिख रहा हो, वह अचानक उसे रोशनी दिखाई दी जाए तो वह कैसा महसूस करेगा? यही हाल उस शख्स का खुशखबरी दे कि मैंने उसे माफ़ कर दिया। यह है अल्लाह की रहमत, यह है मेरे
रब की मोहब्बत वो जरूर देखता है मगर दरवाज़ा बंद नहीं करता। वो नाफरमानी जानता है मगर धुतकारना नहीं। वो देखता है कि बंदा कितना भटक चुका है, मगर जब बंदा पलट आता है तो मेरा रब अपनी मोहब्बत से अपने बंदे को गले लगा लेता है। ओ अल्लाह जो कहता है कि ज़मीन पर आसमान की सारी मखलूक तेरे खिलाफ हो जाए, तब भी अगर मैं तुझसे राज़ी हूँ तो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये वही अल्लाह है जो इंतज़ार करता है। तीसरा अमल, कुरान पाक की तिलावत करना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़ुबान पर ऐसी रोशनी हो जो दुनिया और आखिरत में आपके काम आ जाए, तो इस रात कुरान पाक को सुकून देता है। क्या आपने कभी देखा है कि पानी के बिना मछली मर जाती है? बिल्कुल इसी तरह कुरान के बिना दिल भी मर जाता है। कभी गम और सुकूनी गालिब नहीं आती। इसलिए वो अमल है जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बना देता है। और चौथा अमल, सदका खैरात। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली हो तो आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। दूर कर देता है ये अमल जो आपके गुनाहों को मिटाता है, जो आपकी बख्शिश का जरिया बनता है। प्यारे नाजरीन, आइए अब आपको बताते हैं कि शब बारात को मियाँ बीवी एक साथ सोना क्यों ज़रूरी समझा जाता है। क्या आप इसके पीछे कोई शरई हुक्म है या महज एक रिवायत? अगर आप इस रात को मियाँ बीवी एक साथ न सोएं तो क्या कोई गुनाह हो सकता है? नाजरीन, आज के इस वीडियो में आइए आपको बताते हैं कि शब बारात को मियाँ बीवी को एक साथ सोना क्यों ज़रूरी समझा जाता है। क्या इसके पीछे कोई शरई हुक्म है या महज एक रिवायत? और अगर इस रात को मियाँ बीवी एक साथ ना सोए तो क्या नुकसान कोई हो सकता है? नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पहलू के बारे में बताने लगी हूँ जिस पर शायद पहले आपने कभी गौर नहीं किया होगा। कुछ बताने और सुनने के आम लगती है, लेकिन जब उसके गहराई में जाया जाए तो बड़े गहरे राज छुपे होते हैं। इसीलिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि हम न सिर्फ इस सवाल का जवाब देंगे, शब बारात की असल रूह और इस रात के असल अमाल के बारे में बताएंगे। नाजरीन, शब बारात एक फजीलत वाली रात है जिसे इस्लामी तालीमात में मगफिरत, बख्शिश और रहमत की रात करार दिया गया है। बाज़ लोग इस रात को मखसूस अमाल के साथ मनाते हैं, लेकिन जहाँ तक कि मियाँ बीवी एक साथ सोने का ताल्लुक है, इसके बारे में मुस्तनद हदीस या फुकाहा हुक्म मौजूद नहीं जो इस अमल को खास तौर पर लाजमी करार देता हो। ताहम इस मौजू को मुख्तलिफ जाविये जो अपनी वालिद की खिदमत करता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। जो वालिद को खुश करता है अल्लाह उसके सारे रास्ते की रुकावट दूर कर देता है। कभी सोचा है अगर वह दरख्त की जड़ें मजबूत हो तो दरख्त की दुआएं उसके साथ हो तो आपकी ज़िंदगी भी सरसब्ज हो जाएगी, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। इस रात अपने माँ बाप के करीब जाओ, उनके कदमों में बैठो, उनके लिए दुआ करो, क्योंकि उनकी दुआएं वह हथियार है जो आपके मुकद्दर को संवार सकती है। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों के लिए मैं अल्लाह तबारक तआला से दुआ करती हूँ कि वह हमें और आपको बाबरकत रात में खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको सभी लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे अपने दोस्तों अहबाबों में शेयर करें, लाजमी करें। प्यारे नाजरीन, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, आमीन।